Good evening, everyone, and warm welcome to all of you for joining on this call today. My name is Abhishek Tyagi, and I'm a part of the product team. In today's session, we will discuss the emerging opportunities for the wealth advisor in this rapidly evolving wealth management industry and how Centricity is empowering our advisor to capitalize on this opportunity. Look, India wealth management industry continue to evolve. Now, investors are looking beyond investment returns and they seek diversified basket of financial products and trusted advisor who can help them to preserve their wealth, to grow their wealth, and also seamlessly transfer wealth across generation. So basically, they expect personalized advice tailored to their financial goal. So to discuss on this detail, we have with us Mr. Manu Awasthi sir, who is our founder and CEO of Centricity Wealth Tech. With over 22 years of leadership experience across leading bank and private wealth management firm, he specialized in building and growing HNI and ultra HNI relationship across consumer and private banking. So, having worked with clients, he brings deep insight into how investor expectations have changed over the years. So, I am sure today's discussion will provide you valuable insights that you can apply in your wealth management journey. So without any further delay, now I would like to hand over this session to Manu sir to take it forward. And in between, if you have any question, please feel free to put them in the chat box. We will try to answer all the questions toward the end of this session. Yeah, over to you now, Manu sir. Thank you so much, Abhishek. Good evening, everyone, and thank you for taking out time to come on to this session. It's a privilege for me to meet all of you and engage all of you. In fact, this is not the first time. ये पहली बार नहीं है. मैंने आप लोगों से पहले भी मैंने interact किया हुआ है, and I'm going to continue to do that. But now as a process, I thought it is important कि हम लोग at least quarter में एक बार जरूर interact करें, and no better time than end July and starting August to interact and have a conversation with you. देखिए आज जो ये इंटरेक्शन है इसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस बहुत सिंपल है. एक पार्ट तो ये है कि हमें क्या प्रोडक्ट्स क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, लेकिन शायद उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. इन द पास्ट 2 years, ऑलमोस्ट सितंबर 2024 को अब दो साल होने वाले हैं, 20 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं. मार्केट ने कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है. इनफैक्ट ऑलमोस्ट 10% नेगेटिव ही है मार्केट. 8 से 10% मार्केट नेगेटिव है. तो इस सिचुएशन पे जहां पे इन्वेस्टर्स ने इक्विटी में पॉइंट टू पॉइंट कोई रिटर्न नहीं बनाया है, उस सिचुएशन में हमारी क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे क्या चैलेंजेस है, क्या रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से अपने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो हैंडल करें, अपने proposition को enhance करें for the clients, so that we ensure that the clients are happy, engaged, and they don't get dissuaded by this kind of a market situation. ये market जो है इस time जो चल रही है, it's highly uncertain. It's highly uncertain and uncertain in many ways. मार्केट या तो अच्छी हो या खराब हो, उसमें तो समझ में आता है कि क्या हो सकता है. आज ये जो मार्केट साइडवेज है इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, एंड दिस अनसर्टेनिटी इज समथिंग which is creating lot of confusion, lot of discomfort into the minds of both our clients and our partners. So मैं एक बेसिक लेवल पे इस डिस्कशन को रखना चाहता हूँ. I don't want to get very technical about this interaction. And fundamentally, if I look at this, मैं बहुत ही clear words में, with absolute clarity and confidence, I can say, I don't see market really doing anything great in near future, which is another 3 to 6 months. In fact, there could be more pain, and I'll give you the reasons behind why I feel so. ये जिस तरह की वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, it is bringing high degree of uncertainty, not for only the Indian market, but for the global markets as well. You don't know where and when
this situation will move towards, and what is the resolution of this problem. We have seen Ukraine-Russia war now almost going for over 4 years now, which was supposed to be almost a 7-day war. But the world has moved on. आज जो ये ईरान रिलेटेड जो इशू चल रहा है, ये एक सिर्फ आइसोलेटेड इशू नहीं है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, ब्लॉकिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से काफी ज्यादा रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट हो रहा है. रिसोर्सेज आर गेटिंग एक्सपेंसिव, दे आर गेटिंग डिलेड, व्हिच इज ऑयल in this case, which is pushing inflation across the globe because procurement is more expensive. चीजें महंगी हो रही हैं. ऑलमोस्ट 70% जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस बनाते हैं उसमें पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज होता है. तब जब आपका बेस प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो गुड्स ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. ये एक प्रॉब्लम है जिसका अभी कोई सोल्यूशन या कोई निवारण कुछ शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिख रहा. इट्स हाईली अनसर्टेन फॉर अस. दूसरा प्रॉब्लम है, FIIs have been consistently selling the India market for last 2 years and they have not yet turned net buyers. FIIs पैसा निकाल रहे हैं और काफी कंसिस्टेंसी के साथ निकाल रहे हैं, कुछ महीनों में ज्यादा निकालते हैं. उसका मूल कारण क्या है? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज दैट उनका जो रिस्क फ्री रिटर्न है, जो डॉलर रिटर्न है, वो ऑल टाइम हाई है. एंड देयर इज अनसर्टेनिटी एट देयर लोकल प्लेसेस आल्सो, एंड दैट इज द रीजन. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, दे आर पुलिंग आउट द मनी. ये पैसा आने की उम्मीद कब है वापस? जब तक ये इंटरेस्ट रेट्स यूएस के जिस 5-ish के लेवल पे जो है, अगर ये उसी लेवल पे रहेंगे, it is highly unlikely that the dollar will come back to India market. And if dollar will not come back to the India market, we might not see a kind of a push which is required. Market में रैली आने के chances बहुत कम है. On the other hand, मार्केट करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये हम सबको पता है कि इंडियन डोमेस्टिक इनफ्लोज बहुत स्टेबल है, SIP इनफ्लोज बहुत अच्छे हैं. लेकिन SIP इनफ्लोज में भी एक डेटा मुझे बताया गया था, मैंने खुद नहीं पढ़ा है लेकिन मुझे ये बताया गया था कि जून के महीने में जितना ग्रॉस इनफ्लो आया, ₹1 का इनफ्लो आया था या ₹100 का इनफ्लो आया था, तो उसमें से ₹90 की या ₹9 की, जो 90 पैसे की सिप सीजर्स हुई हैं. 90% ऑफ द सिप इक्विवेलेंट टू द इनफ्लो. ₹100 की सिप आई तो उसमें से ₹90 की उस महीने सिप जो है सीज भी कर गई. ये एक बड़ा ही डेंजरस डेटा है. इट्स अ वेरी डेंजरस इंडिकेटर कि लोगों का धैर्य, पीपल्स पेशेंस इज गोइंग अवे फ्रॉम द मार्केट, एंड दैट इज द रीजन दे आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ देयर लाइफ बाय स्टॉपिंग देयर SIP. और ज्यादातर वो इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पिछले 3-4 साल में पोस्ट कोविड शुरू किया था, कि 2 साल से तो मार्केट ने कोई रिटर्न दिया नहीं है, वो इन्वेस्टर्स जो है पैनिक कर रहे हैं और वो इन्वेस्टर्स मार्केट में जो है अपना इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं. नाउ दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. आई थिंक सो एज अ एडवाइजर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको जो चीज बहुत अच्छे से आती है, दैट विच इज SIP एंड द एडवांटेजेस ऑफ SIP, ये आपको अपने क्लाइंट्स को जाके बताना पड़ेगा और किसी भी तरीके से ये सिप क्लोजर्स को जो है वो रोकना पड़ेगा, या जितना कर्टेल कर सकते हैं उतना कर्टेल करना पड़ेगा. क्योंकि इस लेवल पे भले ही मार्केट में अनसर्टेनिटी है अगले 3, 6, 8 महीने, 9 महीने के लिए, लेकिन इस लेवल पे जो एवरेजिंग हो रही है, वहां से मार्केट जब भी रिटर्न देगी शायद बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न देगी. लेकिन ये पता नहीं है ये मार्केट में टर्न अराउंड कब होगा. नियर टर्म में ये होता नहीं दिख रहा है. Apart from that, especially those investors who have invested in recent times, they are also getting very disillusioned. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको निवेश आगे इक्विटी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. In my opinion, this is the time when the role of a distributor is most important. हमारा काम शायद आज ही के टाइम पे शुरू होता है जब क्लाइंट को नहीं समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है. काफी लोगों ने मुझे सुना होगा आज से 2 साल पहले, व्हेन मार्केट्स वर गुड. मुझे बहुत साफ तौर पे याद है, आई वेरी क्लियरली रिमेंबर बैंगलोर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, and couple of other cities where I went personally
एंड वी यूज्ड टू हैव पैनल डिस्कशंस, हमारे पैनल डिस्कशंस होते थे, तो मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक चीज बोलता था, देखिए आज मार्केट अच्छी है, मार्केट इज गुड टुडे, बट मार्केट ऐसी नहीं रहने वाली है. व्हाट इज योर मार्केट करेक्शन प्लान? मार्केट करेक्शन प्लान का नो, किसी ने लिखा है कि डिड आई हियर SIP टू बी स्टॉप्ड? नो, आई एम सेइंग SIP हैज टू बी कंटिन्यूड. सो देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच पॉप्ड अप ऑन माय स्क्रीन. SIP बिल्कुल नहीं बंद होनी चाहिए, SIP वैसे ही कंटिन्यू रहनी चाहिए और इनफैक्ट बढ़नी चाहिए SIP, क्योंकि इस लेवल पे जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगी वो और कभी नहीं हो सकती. बढ़ती मार्केट में SIP करेंगे लॉस होगा, गिरी हुई मार्केट में करेंगे हमेशा प्रॉफिट होगा. इट्स अ सिंपल थंब रूल. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं उस टाइम कहता था कि आप सब पार्टनर से कि आप लोगों का मार्केट करेक्शन प्लान क्या है. मार्केट 10% गिर जाएगी, 20% गिर जाएगी, बिल्कुल बने रहना चाहिए मार्केट में. लेकिन क्लाइंट शायद ना बना रहना चाहता हो, उसको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए. मैं अभी इस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं साथ के साथ कर रहा हूँ, वरना क्वेश्चंस को हम आखिरी, या तो अभिषेक आप क्वेश्चंस को अभी होल्ड पे कर दीजिए, फिर Sure. एक साथ हम बाद में ले लेंगे क्वेश्चन सारे. आई विल ओपन द सेशन फॉर 10-15 मिनट्स फॉर Q&A. Sure. तो मैं मार्केट करेक्शन प्लान की बात करता था, जो जब लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मार्केट का इतना अच्छा रन अप चल रहा था, लोगों ने 25% 30% रिटर्न्स बनाए हैं, बहुत आसानी से बनाए हैं. और तब मैं उस चीज को बहुत ज्यादा इंफेसाइज करता था कि देखिए अगर रिटर्न्स ऐसे बने तो मार्केट तो नीचे जाएगी, और मार्केट नोन इवेंट्स की वजह से भी जा सकती है, अननोन इवेंट्स की वजह से भी जा सकती है. दिस टाइम the unknown events are the bigger problem, which is this war that has started up. This was an unknown event. ये किसी को नहीं पता था कि ये हो सकती है, और इसकी वजह से जो मार्केट में कंसर्न आया है, जो 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 रिस्क आया है, वो कोई एंटिसिपेटेड रिस्क नहीं था. लेकिन हमेशा मार्केट में ऐसे ही होता है कि अननोन इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट होती है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि मार्केट करेक्शन प्लान होना चाहिए, जिसमें हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, थोड़ा सा डेट में एलोकेशन देते हैं, और उस डेट एलोकेशन को हम इस वजह से देते हैं क्योंकि क्योंकि अगर मार्केट गिर रही है और पैसा डेट में नहीं है, तो हाउ विल यू बाय एट अ लोअर लेवल, हाउ विल यू डू एसेट एलोकेशन? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली took me seriously when I was talking about it 2 years back. जब मैं 2 साल पहले, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने, हाँ लेकिन मुझे ये चीज पता है कि पिछले 4-5 महीनों में एटलीस्ट 50 to 70 partners have directly reached out to me from these locations only, who attended my session, and they said कि what I said was right, and they directly connected with me, and they directly connected with the leadership team, Anirudh, Faraz, Rachit, all of them, कि now that we did not do what we were supposed to do, जो हमें बताया गया था वो सही बताया गया था और वही हुआ है जो जो एंटिसिपेट किया गया था. Now what is the plan of action, what should we do? देखिए इस बाजार में अभी मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था कि बाजार में बने रहना चाहिए, शुड वी स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, और द क्लाइंट्स, व्हाट शुड वी एडवाइज द क्लाइंट्स? देखिए क्लाइंट्स आर ओनली hungry for returns, they should make return, and the base return which the client expects is the risk free return of an FD. FD का जो रिटर्न होता है, क्लाइंट को जब FD से भी कम रिटर्न मिलता है तब उसको दर्द होता है, देन ही इज इन पेन, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो ये पैसे FD में डाल देता तो मेरा 6% रिटर्न बन जाता. हम अनफॉर्चुनेटली डेट एज एन एसेट क्लास को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. वी इग्नोर डेट एज एन एसेट क्लास. Debt starts from liquid fund or FD giving you 5-6% return, and second thing is it starts from here but it goes up to 13-14% return options depending upon the capacity of the client to invest. If as a distributor we are not showcasing the ideas to the client, and if there is an impact in your business, अब impact in your business is not that you are not getting money, आपको फ्रेश पैसा मिल रहा है, ये impact नहीं है. आपने और हमने एक impact साथ में देखा है, which is impact of TER, total expense ratio compression. Lot of our partners have got impacted because of GST, whose income was less than 20 lakhs of rupees.
व्हाट आई एम सेइंग कि आज की डेट में अगर पिछले 2 साल में इन लास्ट 2 years if the market has not given 12% return, which is the nominal rate of return of the market, I would say, and plus there has been an impact of 25% almost on your income because of GST, because of TR compression. Effectively, the real impact to a partner is nearly 50% in last 2 years, which is a very big number. 50% का impact लगा है. 25% का जीएसटी प्लस आपका टीआर कंप्रेशन का लगा है और 25% का लगा है क्योंकि मार्केट ग्रो नहीं करी है. क्योंकि अगर मार्केट 12% ग्रो करती तो आपका एईएम जो है 2 साल में 25% से बढ़ जाता, और आपका एईएम 25% से बढ़ जाता तो आपकी इनकम 25% से बढ़ जाती. ओनली हैंडफुल ऑफ पार्टनर्स, only handful of the partners listened to us and started doing things what we told them almost 2 years back. And they believed into us. And only those partners have gained and scaled big. I am very proud to share. I am very proud to share one thing. That today, because of our partners, 20,000 odd partners that we have, Centricity does 200 crores of AIF and PMS every month. That means there are partners, there are 600 partners with us who have done at least one ticket of PMS sale or one ticket of AIF sale in last 1 year. 600 plus partners. This number is growing by 10 to 20% every year, every month. We get 50 to 60 new partners doing it. So its number is growing rapidly. And the more interesting part is there is more traction to debt AIF, high yielding debt AIF, CAT to debt AIF over any other product. जो आपका कैटेगरी 2 डेट AIF है, जैसे मोज़ाइक हो गया, आपका नियो इंफ्रा हो गया, या क्रेडिट हो गया, या विवृत्ति हो गया, इसमें जो ट्रैक्शन है वो आपके इक्विटी मार्केट से ज्यादा है. These partners have logged in a return of 10 to 14% for their clients for next 3 to 4 years period. And they are the ones where the clients are comfortable. There are partners who have moved money of the client from FD of a let's say a bank like HDFC, ICICI to other scheduled commercial banks like Suryodaya, Unity, which are governed by RBI. These are scheduled commercial banks where the return to the client is higher by 0.5%, 0.75%, and there is almost 20 basis point to 20 पैसे से 50 पैसे की इनकम हमारे पार्टनर के लिए भी. मैं ये कहना चाहता हूं कि डेट एज अ कैटेगरी, मान लीजिए अगर मार्केट अभी अगले 1 साल नहीं चली और आपने डेट अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं किया है, आप कैसे अपने आप को सर्वाइव और सस्टेन करेंगे? मैं इक्विटी पे बाद में आऊंगा, पहले मैं डेट पे आज बात करना चाहता हूं आपसे. आई एम सेइंग आपके सारे क्लाइंट्स, शायद ही कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट होगा, और इंडिया में नॉट मोर देन 10% क्लाइंट्स विल बी देयर who do not have money into debt in the form of FD. हमें सबसे बेसिक चीज से शुरुआत करनी है, which is debt. डेट की जो शुरुआत होती है वो होती है अगर शॉर्ट टर्म पैसा है और उसकी रिक्वायरमेंट है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में, प्लीज लुक एट लिक्विड फंड. If the money is more than 1 year, okay, then you can look at other scheduled commercial bank FD, like I said, Suryodaya, Shivale, Unity, where the return to the client, and अगर आपको पूरी एब्सोल्यूट सिक्योरिटी देनी है तो आप एक बैंक में एक पैन के अंदर 5 लाख रुपए से ऊपर की एफडी मत करिए, which is secured by the regulator. 5 बैंक में आप 5 लाख रुपए की एफडी कर देंगे, 25 लाख रुपए की सारी सिक्योर्ड रहेगी. इफ यू डोंट ट्रस्ट और द क्लाइंट डजंट ट्रस्ट, बट द क्लाइंट विल ऑल्सो अर्न मोर, प्लस यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न 0.2 to 0.5% in these FDs. एफडी के बियॉन्ड अगर क्लाइंट को कुछ देखना है, उससे ज्यादा रिटर्न देखना है, आप 2 साल के पर्सपेक्टिव से आप डेफिनेटली बॉन्ड्स कर सकते हैं. यू कैन डेफिनेटली डू बॉन्ड्स. देयर आर बॉन्ड्स विच गिव यू रिटर्न between 8% to going up to 12 to 13%.
which is better than FD, and good quality bonds. Third thing, those investors who have large corpus, जिनके पास 1 करोड़ रुपया है 2 साल में देने के लिए, they must look at AIFs, category 2 AIFs, which can give return between 12% to 15-16% return. अगर ये प्रोडक्ट्स हम नहीं कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स हम क्लाइंट्स को नहीं दिखा रहे हैं, then we are doing a disservice to the client. We are not even sharing the options and opportunities that the client have to put their capital into the right instruments. सही जगह निवेश करने का हम उनसे मौका छीन रहे हैं, जहां पे उनके रिटर्न्स बढ़ सकते हैं, जहां पे उनका इक्विटी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है अंडर परफॉर्मेंस को, और वो क्लाइंट्स जो ऑल्टरनेट साइड पे नहीं इन्वेस्ट करेंगे और इक्विटी में अगर उन्होंने 3 साल तक पैसा नहीं बनाया, then these investors will not forgive the distributor, because nobody can be invested and not make money for 3 years, and it is a reality. हो सकता है अगले 1 साल तक मार्केट ना चले. मैं फंडामेंटली इंडिया की स्टोरी से बिल्कुल भी मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है. इंडिया स्टोरी इज इंटैक्ट फॉर 10 years. But next 3 months, 6 months, 9 months or 12 months are going to be extremely difficult. 10-year story is good. I have no divergence in that. मेरे को कोई, तभी मैं कह रहा हूं कि SIP होती रहनी चाहिए. SIP should not stop. But at the same time, when the client will not see returns being made, he will get vulnerable. उनको एक confidence नहीं आएगा हमारे ऊपर as distributors, and they will tend to pull out money from the equity market at a low, and any client जिसने नीचे की बाजार में पैसा निकाला है वो कभी ऊपर की बाजार में दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेगा. So बड़ी अजीब सी सिचुएशन है. So debt has to be looked very seriously, very consistently. Second thing, when we talk about equity में हम क्या कर सकते हैं कि क्लाइंट के रिटर्न भी अच्छे बने और हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज भी हो. दो चीजें हैं हमारे पास करने के लिए. पहली चीज जो है, वी मस्ट लुक एट अनलिस्टेड इक्विटी. अनलिस्टेड कंपनीज का डायरेक्ट कोरिलेशन मार्केट से कम होता है. वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, क्योंकि लिस्टेड नहीं होती हैं तो उनकी वैल्यूएशन परफॉर्मेंस में मिलती है. We have been doing for last 3.5 years since we started Centricity. We have been doing NSE. Almost all our clients and partners have made money in NSE. NSE का एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें पार्टनर्स ने खुद पर्सनल इन्वेस्ट किया है. In the past, many companies which we have done have given fantastic returns to our clients, even where the returns are not extrapolated. बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आए हैं. Relative risk return ratio has always been better in unlisted, in select companies which we do, not all companies. We are very choosy and selective about good companies. We have only done large cap companies in unlisted. That is one thing which you must take to your clients. क्योंकि अगर equity market revive हुई, whatever time it takes, even these unlisted companies will give you a disproportionate return. और आज की डेट में ये भी कंपनीज जो है अपनी फेयर वैल्यूएशन से सस्ते पे मिल रही हैं. You must look at unlisted equity. तीसरी चीज जो है, क्लाइंट्स का थोड़ा पैसा जो है ग्लोबल मार्केट्स में आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए. इंटरनेशनल मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इज अ मस्ट. There are funds out of India. Our team knows those funds and they are in discussion. Our ICs know those funds. There is no way that a client should not be informed. क्लाइंट को हमें बताना ही बताना है कि ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, और हर क्लाइंट का 10 से 20% पोर्टफोलियो शुड बी एक्सपोज्ड इनटू द ग्लोबल मार्केट्स. कि मान लीजिए अगर इंडिया में सस्टेन एटलीस्ट उनका डॉलर में इंटरनेशनल मार्केट में एक बेटर रिटर्न बन सकता है. फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज द फंड मैनेजर्स ऑफ सेलेक्ट PMS and AIF are better positioned to generate returns even in a bear market like this over mutual fund managers. क्यों ऐसा है? क्योंकि वो छोटा पोर्टफोलियो मैनेज
करते हैं 2000, 5000, 10,000 करोड़ का, देयर ability to do selective stock picking is better, and hence they are in a position to offer a superior risk adjusted return. ये चीज टाइम प्रूवन है. Most of our funds which we had recommended have been positive and have given a good return. It is a easier way to garner AUM, क्योंकि अगर क्लाइंट PMS करता है तो मिनिमम 50 लाख रुपया देता है. PMS नहीं करता है, AIF करता है तो 1 करोड़ देता है. तो आप कितने रिटेल क्लाइंट्स के साथ जाके 50 लाख से 1 करोड़ गैदर करेंगे म्यूचुअल फंड में, विज़ावी आप एक AIF या एक PMS में इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ यू शुड थिंक थ्रू. एंड आप लोगों को अपने क्लाइंट्स को ये प्रोडक्ट्स दिखाने और पोजीशन करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इट इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी फॉर यू टू डू इट, बिकॉज इस मार्केट में अगर हमने प्रोएक्टिवली प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए, हमने डिस्कशन नहीं करी डेट के बारे में, हमने ऑल्टरनेट्स नहीं दिखाए, तो आने वाले टाइम में क्लाइंट को अगर किसी और ने ये प्रोडक्ट्स दिखा दिए तो क्लाइंट यही सोचेगा कि दैट यू नेवर हैड दैट कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी थी ना स्किल सेट थी कि आप ये प्रोडक्ट्स दिखाते. एंड योर प्रोपेंसिटी टू लूज सच क्लाइंट्स is going to be high. Last but not the least, आप लोगों ने एक वाइट पेपर देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही आया है, where SEBI has given a proposal to introduce a MF PMS. एक PMS जो 25 लाख रुपए का होगा, जिसमें PMS डायरेक्ट कोड में इन्वेस्ट करेगा और उसमें SIF भी कर सकते हैं और भी कुछ प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, और PMS फंड मैनेजर जो है उसके लिए फी चार्ज करेगा. ये एक आने वाले समय में रियलिटी है कि PMS, MF PMS is going to become a very big thing. समझने वाली बात ये है, what is to be understood, why the regulator has brought this in. ये रेगुलेटर क्यों लेकर आए हैं? नॉर्मल म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट हो सकता है, उसका रीजन है 70% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म द मार्केट. 70% ऑफ द, ये मेरा डेटा नहीं है, ये मार्केट डेटा है. सेकेंडली, जैसे मैंने कुछ पॉइंटर्स भी पढ़े मैसेज में कि ब्रोकरेज कम हो गई है, कमीशन कम हो रही है. सेबी ये नहीं चाहता है, या रेगुलेटर ये नहीं चाहता है कि इन्वेस्टिंग शुड बी कमीशन बेस्ड ड्रिवन. तो इस चीज को ठीक करने का तरीका क्या है कि आप एक PMS ले आइए. PMS के अंदर आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं. यू कैन डू म्यूचुअल फंड्स अंडर PMS एंड इन डायरेक्ट कोड. जैसे ही आप डायरेक्ट कोड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, आपका कोई बायसनेस जो है वो कमीशन के तरफ नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फंड हो, मुझे तो कमीशन मिलना नहीं है. जब मुझे कमीशन नहीं मिलना है तो मैं बेस्ट ही चूज करूंगा. मैं कमीशन के बेसिस पे A फंड वर्सेस B फंड, B फंड वर्सेस C फंड तो करने वाला नहीं हो. लेकिन आपको अगर इनकम जनरेट करनी है तो आप क्लाइंट से फी ले लेंगे. तो फंड आपने 1 दिया हो, 10 दिया हो, 50 दिया हो, AUM आपका 10 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, 50 लाख हो, 40 लाख हो, कोई भी हो, आपको एक फिक्स्ड फी मिलेगी. और ये फी आप फी की तरह भी चार्ज कर सकते हैं, और आप इसमें जो है परफॉर्मेंस फी भी चार्ज कर सकते हैं कि अगर मैं आउट परफॉर्म कर रहा हूं. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट Centricity well within time has secured PMS license to do this on behalf of our partners. कल आपके क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं, मुझे MF PMS करना है और मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप डायरेक्ट कोड में शिफ्ट करिए. वी आर रेडी with our PMS license, both NDPMS and DPMS, to address this need and requirement. You can bring your clients and we can manage their mutual fund portfolio through a PMS and charge a fee on your behalf
फ्रॉम द क्लाइंट्स। और आने वाले समय में मैं आपको ये चीज आज काफी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, विद सर्टेनिटी एंड श्योरिटी, दैट MFPMS is going to become very big in next 3 to 5 years period. You will see lot of money moving into this because it has better control, it has better governance, better alignment of interest, या कोई conflict of interest नहीं है क्योंकि सारी investment direct court में हो रही है. But our partner is not losing out onto it because he, on behalf of the partner, we are charging him the fee, the client a fee also. अब वो 1% की fee हो, आधा % की fee हो, whatever that fee would be, but we are going to charge a fee. So just to summarize my last 30 minutes with you almost, I will just narrate what I said. Markets difficult हैं, uncertain है, कोई सरप्राइज नहीं है कि अगले 12 महीने मार्केट्स में रिटर्न नहीं बने. हो सकता है 3 महीने में मार्केट रिकवर करे, हो सकता है 6 महीने में करे, लेकिन ये भी सरप्राइजिंग नहीं है कि मार्केट अगले 12 महीने रिटर्न्स ना दे. पहली चीज. दूसरी चीज, क्लाइंट्स आर गोइंग टू गेट एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल इफ दे डोंट सी रिटर्न्स फॉर अनदर 6 to 12 months. उस सिचुएशन में क्लाइंट रिएक्ट करेगा, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं सिप क्लोजर्स के मामले में. वो सिप क्लोज करेगा, जिसको आपको हर तरीके से कोशिश करनी है कि सिप नहीं क्लोज होनी चाहिए. इनफैक्ट इस मार्केट में सिप बढ़नी चाहिए, वरना वो लमसम पुल आउट करेगा पैसा और सेफर एसेट में डालेगा. सेफर एसेट आपका या तो रियल स्टेट उसके लिए होगा या आपका डेट होगा. एंड गॉड फॉरबिडेन, अगर पैसा रियल स्टेट में चला गया तो वो आपका लाइफ टाइम लॉस है, वो पैसा आपके पास दोबारा वापस नहीं आएगा. डेट में चला गया फिर भी है, भाई मैं 0.5% की ब्रोकरेज नहीं बना रहा हूं, मैं 0.1% की ब्रोकरेज बना रहा हूं, लेकिन मैं बना रहा हूं. तो पहली चीज आपको इंश्योर करनी है कि आपका AUM जो है रियल स्टेट एज एन एसेट क्लास में ना जाए. इट रिमेन्स इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैटेगरीज. 95% of our clients will have good AUM into fixed deposit. Please talk to them, show them the products what you can offer. Products में मैंने आपको जो products बताए हैं, they are as follows. Look at bank FD, look at corporate FD, bonds, liquid funds, और जिनको हायर रिटर्न चाहिए और जो 1 करोड़ रुपए की कमिटमेंट कर सकते हैं, उनके लिए कैटेगरी 2 AIFs. ये आज की डेट में यही मेरा मार्केट करेक्शन प्लान आज से 2 साल पहले का था, जब मैं आप लोगों से मिलता था, बात करता था. एंड आई यूज्ड टू से कि यू हैव टू लुक एट दीज. ये हमारा हो गया डेट साइड में. इक्विटी में हम बात करते हैं, अनलिस्टेड इज अ नो ब्रेनर. गुड कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज इज व्हाट यू शुड डू. कोई छोटी कंपनी, स्पेकुलेटिव कंपनी, 10 गुना बढ़ने वाली, 20 गुना बढ़ने वाली कंपनी नहीं चाहिए हमको. हमें अच्छी लार्ज कैप प्रॉफिटेबल कंपनी चाहिए जो साल का 12 से 18% का रिटर्न दे. दैट्स ऑल व्हाट वी आर लुकिंग एट. नो रिस्क. फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं हाई क्वालिटी AIFs and PMSs. SIF is a very big category for you to look at. SIF is a very good category for you to look at. And international investment exposure. इंडिया के बाहर निवेश करने का डिस्कशन आपको करना चाहिए. डाइवर्सिफिकेशन आपको बिल्ड करनी चाहिए. एक अच्छे पोर्टफोलियो में डेट होगा, म्यूचुअल फंड होगा, SIP होगा, 1-2 PMS होंगे, शायद AIF हो, और आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा. एक अच्छा पोर्टफोलियो जो HNI का पोर्टफोलियो होता है, उसमें ये सारी एक बैलेंस डाइट की तरह जो है एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता है कि अगर इक्विटी मार्केट नहीं रिटर्न दे रहा है तो मेरा 40%, 30% रिटर्न जो है पोर्टफोलियो जो है डेट में है, जो कम 10-12% रिटर्न दे रहा है, तो जिससे कि एवरेज मेरे पोर्टफोलियो में 5-6% रिटर्न निकल कर आ जाए, जो मुझे मेरे क्लाइंट को आइडियली FD में मिलता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ. हैप्पी टू टेक ऑन क्वेश्चंस. अभिषेक, व्हाट यू कैन आल्सो डू, आप ये तरुण का या रचित का, अनिरुद्ध, फराज के, इनके भी आप माइक्स ओपन कर सकते हो, Sure. सो दैट एज अ फोरम
वी ऑल कैन हैव अ डिस्कशन, बिकॉज जिस तरह के क्वेश्चन इस समय क्या इक्विटी को डेट में स्विच कर, नहीं सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए इक्विटी को डेट में स्विच। सबसे बड़ी गलती होगी, डेट का पैसा ही डेट में होना चाहिए, इक्विटी का इक्विटी में होना चाहिए। डेट को इक्विटी में स्विच करने वाली आपकी बस मिस हो गई है, ये 2 साल पहले थी, यू हैव मिस द बस। अब अगर करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में जरूरी है। सो आई थिंक सो। व्हाट अबाउट ब्रोकिंग लाइसेंस, व्हेन आर यू स्टार्ट? सर ब्रोकिंग लाइसेंस आ गया, इस महीने के एंड में आपको स्टॉक ब्रोकिंग मिल जाएगा, अगस्त एंड में, सितंबर से आपको मिल जाएगा। हमारा दशहरे पे लॉन्च का है। व्हाट्स योर व्यू ऑन गोल्ड? नॉट अ गुड व्यू। गोल्ड may remain like this or may fall further. ठीक है अभिषेक, नाउ वी कैन, यू कैन टेक द क्वेश्चंस एंड आप, मैं अनिरुद्ध को देख सकता हूँ, रचित को देख सकता हूँ, आप इन लोगों के माइक ओपन कर सकते हैं, फराज के माइक ओपन कर दीजिए, सो दैट वी ऑल कैन टॉक टू आवर पार्टनर्स। श्योर सर। सो सर काफी सारे क्वेश्चन है रिलेटेड टू करंट मार्केट सिचुएशन, स्पेशली फॉर दोज इन्वेस्टर जिसने पिछले 6 महीने या साल भर में इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ दे आर सीइंग कि मेरा पोर्टफोलियो 3% डाउन है या मेरा पोर्टफोलियो 5% डाउन है, व्हाट शुड आई डू? एंड बीइंग एन एडवाइजर कैसे उनको कन्विंस किया जाए, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं तो देखिए, उनको एक सिंपल सीधा डिस्कशन करना चाहिए। आपने 3 या 4 महीने के हिसाब से पैसा मेरे साथ इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया था, आपने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करा है मिनिमम 2 to 3 years के हिसाब से, और उनको ये चीज मार्केट के पीई लेवल समझाने पड़ेंगे। आज मार्केट का 20 का पीई है, 20.5 का पीई है, मार्केट बहुत ही फेयरली वैल्यूड है। जब भी मार्केट रैली करेगा यहाँ से 20 से 30% रिटर्न देगा। मैं एक सिंपल मैथ्स बता रहा हूँ, क्यों मार्केट जब भी रिकवर करेगा 30% के आसपास रिटर्न देगा। देखिए 2 साल में, पिछले 2 साल में कोई रिटर्न नहीं बना। अगर मार्केट एवरेज 12% रिटर्न देता तो 24% मार्केट वो रिटर्न रिकवर करेगा ही करेगा। और आने वाले समय का 1 ईयर फॉरवर्ड 10-12% का रिटर्न लगा लीजिए। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि मार्केट जब भी रिकवर करेगा 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने बाद, आपको एकदम से मार्केट 20 से 30% रिटर्न देगा। और जो इन्वेस्टर उस टाइम पे इन्वेस्टेड नहीं होगा, उसका रिटर्न अगले 5 साल के लिए खत्म हो जाएगा। तभी मैं कहता हूं कि आज की मार्केट में एसआईपी बंद होनी ही नहीं चाहिए, एसआईपी बढ़नी चाहिए। ओके सर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी आर रिसीविंग कि मेरे को 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना है, या आई वांट टू इन्वेस्ट 1 करोड़, आई वांट टू इन्वेस्ट 10 लाख, कि कहाँ पे करना चाहिए? आई थिंक इन देखिए दिस 2 करोड़ है, 2 करोड़ अगर मान लीजिए इन्वेस्ट करना है, आपको एक अच्छा सा ऐसे क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहिए। देखिए एक चीज हम लोग जो नहीं करते हैं, जो हमें करना चाहिए, वो रिस्क प्रोफाइलिंग है। आई मीन दिस इज आवर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द रिस्क प्रोफाइलिंग। इन्वेस्टिंग इज नॉट टू इन्वेस्ट ओनली इनटू इक्विटी। एफडी भी इन्वेस्टमेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। बट मैं एज्यूम करता हूं कि क्लाइंट ने पैसा दिया है और इक्विटी के लिए दिया है। आई थिंक स्लोली आप एसआईपी के थ्रू, अगर मुझे आज इन्वेस्ट करना होगा तो शायद एक ऐसा इन्वेस्टर जिसका 3 साल से 5 साल का टाइम होराइजन है और उसको 2 करोड़ रुपया निवेश करना है, और ये हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उसमें से 2 करोड़ में से करीब 50 लाख रुपए तो मैं लमसम आज की डेट में इन्वेस्ट कर दूंगा म्यूचुअल फंड्स में। और जिन म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट करूंगा, जैसे 50 लाख में मैं 5 म्यूचुअल फंड चूज करूंगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप 40%, 30%, मिड कैप 30%, स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड्स भी चूज कर सकते हैं। उन्हीं फंड्स में जो है मैं 50 लाख की और एसटीपी लगा दूंगा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, कि जिससे कि मार्केट अगर वॉलेटाइल चल रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश कर रहा हूँ, मार्केट रैली कर जाएगा मैं एसटीपी बंद कर दूंगा, मार्केट और करेक्ट हो जाएगा तो मैं एसटीपी बढ़ा दूंगा, या जल्दी उसको फास्ट ट्रैक कर दूंगा। जो मुझे 12 महीने में इन्वेस्ट करना था वो मैं 2 से 3 महीने में इन्वेस्ट करूंगा, 4 महीने में इन्वेस्ट करूंगा। ये तो मेरा 50 to 60% जो है मेरा म्यूचुअल फंड एक्सपोजर हो जाएगा। मैं कम से कम नहीं तो 2 करोड़ में 10 से 15% का जो है अनलिस्टेड उनके लिए करूंगा। मैं उसमें 10 से 20 लाख के रुपए के बॉन्ड्स करूंगा उनके लिए। मैं एआईएफ कर नहीं सकता हूं कि 50% ऑफ द मनी कैन नॉट बी पुट इनटू वन फंड। इवन शायद मैं पीएमएस भी नहीं कर पाऊंगा उनके लिए, क्योंकि अगर मैं पीएमएस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा 2 करोड़ में, तो ऑलमोस्ट 25% एक स्कीम में हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स, लमसम, एसआईपी, एसटीपी रूट, अनलिस्टेड इक्विटी,
bonds और some amount in debt mutual fund is what I will invest. डेट को मैं बहुत ही टैक्टिकली प्ले करूंगा. अगर जब भी मार्केट नीचे होगी मैं उसी डेट से जो है इक्विटी और खरीदूंगा. जब तक नहीं है डेट में मेरा टारगेट रहेगा कि मैं क्लाइंट का 8% के आसपास रिटर्न बना के दूं, विच इज बेटर देन एफडी. इक्विटी में तो जो रिटर्न आएगा, लेकिन इस बाजार में जो इन्वेस्टर नया इन्वेस्ट हुआ है, भले ही उसको भी रिटर्न अच्छी नहीं दिख रही है, बट आने वाले समय में रिटर्न सबसे ज्यादा यही इन्वेस्टर बनाएगा, क्योंकि उसने वो 2 साल नहीं लगाए हैं जो जो बाकी इन्वेस्टर ने लगाए हैं बिना पैसा बनाए. सो आई ओके. होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. यस सर, यस सर. सो अनिल सर, एक क्वेश्चन आपके लिए भी आया है कि आई एम ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, विल SIF सर्टिफिकेट विल हेल्प मी टू ग्रो? आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? 100% सर. आई थिंक निकित ने ये क्वेश्चन पूछा है. आई गेस मैंने ये क्वेश्चन देखा था, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प. सर, द होल पॉइंट इज दैट वी नीड टू एम्ब्रेस ऑल द न्यू एसेट क्लासेस, ऑल द न्यू प्रोडक्ट क्लासेस दैट आर कमिंग. अब जैसे मनु ने बताया कि म्यूचुअल फंड PMS आने वाला है, तो वी ऑल नीड टू एम्ब्रेस दैट, because gone is the time and era जब clients didn't have information or access to information. Today clients have more information than us. They have WhatsApp University, they have Instagram University, Facebook University. They are being taught and bombarded with information and education almost on the daily basis, and it is very important for all of us to upgrade ourselves and update ourselves for the products. चाहे वो SIF हो, चाहे डेट PMS हो, डेट AIF हो, anything that is a financial instrument and which is available at Centricity or even outside, we all need to learn that and upgrade ourselves. I hope that was able to answer, because especially when market moves sideways, it's the most difficult market. जब market correct होता है, it is an easy decision कि ठीक है मुझे equity लेना है, I have to top up my equity. But when market doesn't go anywhere, it moves 3% up, 3% down, and for 1 year, 2 years, it gives you almost zero returns or negative returns. That is the most difficult time. And in these times, we have to be closest to our clients, our investors. And it is in these times that the other asset classes and other product classes start delivering returns. चाहे वो डेट हो, चाहे SIF हो, चाहे बैलेंस फंड्स हो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हो, ऑफशोर फंड्स हो. And in fact, just to answer one more question which people had asked, is it a good time to invest in gold or is it a good time to invest in global markets? So the answer again goes back to asset allocation and product allocation and diversification. At any point of time, we should have 5 to 10% exposure towards gold, and we should have anywhere between 5 to 20% exposure towards offshore market. Having said that, if you are entering for the first time, this is not the time to go lump sum and do entire allocation right now. Please use staggered approach, whether it is gold, whether it is offshore market. The idea is they are also ultimately offshore market also investing into equities, and there are a lot of markets like Korea, Japan, and US which have done very, very well. They have rallied a lot, and therefore it is prudent that we stagger the investment over next 3 to 5 months and then build those position. But prima facie, we need to have diversification, we need to have asset allocation. That is the only mantra. And especially in sideways market, the more you adopt and embrace different asset classes and product classes, it will help you and your clients' portfolios to withstand these volatilities and almost zero return markets. यस यस. सर, एक क्वेश्चन काफी रेलिवेंट हमारे पास रिसीव हुआ रिलेटेड टू PMS एंड AIF, कि किस तरह के क्लाइंट को PMS एंड AIF पिच करना चाहिए, बिकॉज द टिकट साइज इज 50 लाख फॉर PMS एंड 1 crore फॉर AIF. सो Right. कितना उसका पोर्टफोलियो होना चाहिए, एंड व्हाट इज द रिस्क एपेटाइट ऑफ दैट क्लाइंट जिसको हम ये पिच कर सकें? सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? राइट. सो सर, हमारा थंब रूल बहुत सिंपल है कि नन ऑफ द सिंगल इंस्ट्रूमेंट और फंड शुड हैव मोर देन 20% एक्सपोजर ऑफ द पोर्टफोलियो. What does that mean? If I have to invest 50 lakh into a fund, right, I should at least have 2.5 to 3 crore of portfolio. And if I have to invest 1 crore into an AIF, I should have at least 4 to 5 crores of portfolio. That is the thumb rule, sir, that you should not exceed 20% of the portfolio in one single fund or one single fund manager or one single instrument. Okay, okay. And a few question on systematic withdrawal plan. If somebody is already invested and they are doing SWP, but because of market correction, their portfolio is down. So should we stop this SW or we should continue on this SWP part?
Now, again, the answer lies in what is the asset allocation and what is the liquidity scenario. If that client is completely dependent on this SWP on their monthly financial needs, you cannot stop it. But if there's enough and more resources available for liquidity, yes, this is not a good time to withdraw from equity. In fact, this is the time to top up the equity slowly and keep building the position. Okay, okay. And sir, related to unlisted equities also, we have received a question कि rather than chasing opportunity, we should focus on fundamental companies. We should focus on the fundamental of the companies rather Right. than कि इसका share price इतना बढ़ गया है. Right. So thank you बिल्कुल so सही much बात for this question because this is very, very close to our heart. And I'm sure, our teams would have reached out to you that we are following a portfolio allocation approach in unlisted equity. So much so that we have created a model portfolio allocation for as small as 2 lakh. If your client wants to just invest 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, or 10 lakhs, you just put it on an Excel sheet and it will give you an asset allocation across 7 identified fundamentally good, strong companies, which are most of them profit generating or following a good growth trajectory. And we follow fundamentals only. We are not really chasing companies for returns. And that has been our thesis since day one. We have never chased returns, neither we have chased any stock because it has announced an DRHP or IPO. In fact, that is the time when we become more cautious and we only do it on reverse solicitation basis. Most of the companies that we have picked up are 1 year, 2 year, or 3 year away from their IPOs because we believe that's when you get the maximum, bang for the buck. Right, sir, right. And sir, for related to PMS and AIF, we have आर्या, रिक्वेस्ट आ रही है थोड़ा सा हिंदी में हाँ हाँ डिस्कस करो. सॉरी तो मैं ये अनलिस्टेड वाला फिर से एक बार हिंदी में भी आंसर कर देता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए. हम लोगों ने एक पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोच निकाली है फॉर अनलिस्टेड इक्विटी वेयर आप 2 लाख रुपए के लिए एलोकेशन भी अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं अक्रॉस 7 स्टॉक. और उसमें आपको सिर्फ अमाउंट डालना है एंड इट विल गिव यू द एलोकेशन कि किस में कितना जाना चाहिए. एंड वो 2 लाख हो, 5 लाख हो, 7 लाख हो, 10 लाख हो, वॉट एवर इज द अमाउंट आप आराम से उसमें डाल के एलोकेशन दे सकते हैं. एंड हमने एक बहुत अच्छा एलोकेशन डेक बनाया है जिसमें हर कंपनी के फंडामेंटल्स वी हैव शेयर्ड कि उसमें वो कंपनी की बिजनेस क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका ग्रोथ क्या है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ताकि यू आर नॉट चेजिंग रिटर्न, यू आर नॉट चेजिंग जस्ट द आईपीओ. आप वो कंपनी में पैसा इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो आपको 20-25% का ग्रोथ अगले 3 से 5 साल में दे सके. एंड अगेन अनलिस्टेड इक्विटी इसलिए नहीं करना है कि अगले 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा. अनलिस्टेड इक्विटी भी किसी और इक्विटी की तरह 3 से 5 साल का व्यू लेके ही इन्वेस्ट करना है. तो काफी सारे चैट बॉक्स में आ रहे हैं कि दे आर थैंकिंग टू मनु सर फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच सर. वी विल डेफिनेटली डूइंग दिस सेशन एवरी क्वार्टर नाउ ऑनवर्ड्स. थैंक यू फॉर योर इनपुट्स. एंड सर रिलेटेड टू पीएमएस एएफ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरे को पीएमएस करना है. डू आई नीड टू फर्स्ट क्लियर द पीएमएस एग्जाम और एएफ एग्जाम समथिंग लाइक दैट. क्या मैं उसके बाद ही अपना पीएमएस या एएफ का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? तो इसका आंसर यस एंड नो है. यस इसलिए कि इट्स ऑलवेज गुड, सबको अपना अपना सर्टिफिकेशन करना चाहिए. लेकिन क्या सेंट्रिसिटी के थ्रू अगर आपको पीएमएस एआईएफ करना है तो सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है? तो इसका आंसर है नो. आप आज भी कर सकते हैं. आपने सर्टिफिकेशन नहीं भी किया हो तो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं. एंड उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, डेक बनाई हैं. हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए एंड दे विल हेल्प यू विथ कि कौन से पीएमएस है जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं आउट ऑफ hundreds of PMS and AIF in the market, which are the very strong and growth oriented ones जो हमें fundamentally बहुत strong लगते हैं and where we have a strong trust on the fund manager, on the fund house, their thesis कि वो कैसे stock selection करते हैं, कैसे companies identify करते हैं. उसमें भी हमें बुटीक नेम बहुत ज़्यादा पसंद है. उसमें बुटीक नेम पसंद होने के 2 रीजंस हैं. एक ये कि ये एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स हैं. दूसरा उनका स्किन इन द गेम है. दे आर ऑल्सो द प्रमोटर्स एंड ओनर्स ऑफ दीज एएमसीज या पीएमएसएस. उनका खुद का पैसा उसमें लगा हुआ है. दे फॉलो अ वेरी फोकस्ड अप्रोच. दे डोंट हैव 10, 15, 20 स्ट्रैटेजीज. दे यूजुअली हैव 1 और 2 स्ट्रैटेजी या 3 स्ट्रैटेजी. एंड देयरफॉर अगर एक पूरा फंड हाउस 1 या 2 स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग गुड रिटर्न्स इज मच हायर देन अ very diversified set of portfolio from the fund house.
So, Ani sir, Aditya is asking just a minute, कि what is the best strategy to deal with people who belong to rural areas and the potential of investment is high there? राइट। तो सर बेस्ट स्ट्रेटेजी तो आईएपी होती है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। इससे अच्छा कुछ नहीं है। हम्म। अगर आपको चाहे रूरल हो चाहे सेमी अर्बन हो, अर्बन हो, वेनेवर हम किसी भी नए क्लाइंट के पास या इन्वेस्टर के पास जाते हैं, प्लीज फॉलो द बेसिक्स। आईएपी कीजिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, उनको बताइए कि क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है, कैसे इन्फ्लेशन हिट करता है हम सबको। मतलब हमें सबको पता है कि ऑयल या पेट्रोल आज से 5 साल पहले कहाँ था और आज 5 साल बाद कहाँ पे है। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये 5-6% नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन्वेस्ट करें। और डिपेंडिंग ऑन कि उसका कैश फ्लो कैसा है, उसकी इनकम कैसी है, उसके हिसाब से आप उनका पोर्टफोलियो बनाइए। हमारे वन डिजिटल ऐप पे आपको गोल प्लानिंग भी मिलेगा, रिस्क प्रोफाइलिंग भी मिलेगा, पोर्टफोलियो एलोकेशन भी मिलेगा, क्विक इन्वेस्ट टूल भी मिलेगा। और सेंट्री शाला में जाके आप ये सारे हमारी प्रेजेंटेशंस यूज कर सकते हैं, जो आप आईएपी प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, उनको समझाने के लिए। और अभी हम बहुत जल्दी एक और नई चीज निकालने वाले हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो तरुण का ही प्रोजेक्ट है। और वो जब लॉन्च होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि फॉर पार्टनर अवेयरनेस एंड क्लाइंट अवेयरनेस एंड एजुकेशन हमने एक चीज निकाली है। और वो जब आप तक पहुंचेगी, उसका नाम ज्ञान सेतु है, वो जब तक आप तक पहुंचेगी आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। एंड होपफुली आने वाले 6 महीने में जब हम लोगों का एआई भी इंटीग्रेट हो जाएगा, sentinel.ai, तो बहुत हेल्प मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन, पोर्टफोलियो रिव्यू। नए क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो पोर्टफोलियो रिव्यू करके टॉपअप कैसे करना है, ओवरलैप एनालिसिस कैसे करना है। ऑल दीज आर वेज टू आइडेंटिफाई कि रिस्क कितना है पोर्टफोलियो में, चाहे ओवरलैप हो, स्क्यूनेस हो, पोर्टफोलियो एलोकेशन हो, एसेट एलोकेशन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू हाउ क्लोजली वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स। स्पेशली बुरे वक्त में उनका हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। Right, sir, right. So, one more question from Afroz Khanzi on unlisted equity. Is there any minimum or maximum ticket size in unlisted equity? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। Okay, okay, sir. So Piyush Agarwal ji is saying, sir, Anirudh sir, I really like your communication skill. थैंक So, यू। okay. So some mostly question is on the current market situation कि कैसे कहाँ पे allocation करना चाहिए. I think the clear cut answer, like Manu sir and Anis sir is mentioned, the most important part is the asset allocation. सर आज मार्केट अच्छा कर रहा है डजंट मीन मैं सारा आज इक्विटी में डाल देता हूँ. मार्केट बुरा कर रहा है डजंट मीन मैं सारा इक्विटी से विड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज यूजुअली द मिस्टेक ऑफ द इन्वेस्टर. दैट्स व्हाई एडवाइजर इज देयर फॉर यू. इनफैक्ट सो अभिषेक, हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वैल्यूएशन एंड एसेट एलोकेशन डैशबोर्ड जो हमने बनाया है। दैट विल हेल्प कि कभी भी कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पोर्टफोलियो एलोकेशन कर रहे हैं या रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, आप वहां जाके वन डिजिटल पे प्लीज वो हमारा एसेट एलोकेशन कम वैल्यूएशन मैट्रिक्स जरूर देखिए, जो आपको ये बताएगा कि अभी मार्केट ओवर हीटेड है कि ओवर सोल्ड है, वैल्यूएशन कम है कि वैल्यूएशन ज्यादा है। एंड हमने उसमें एक ब्रॉड रेंज भी दी हुई है कि इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट कितना होना चाहिए। वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। जरूरी नहीं है कि आप उतना ही करें, आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्लाइंट का एपेटाइट कैसा है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है। लेकिन अगर मुझे इसे समराइज करना है इस पूरे डिस्कशन को, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस समय कि हमने बहुत अच्छे रिटर्न्स बहुत जल्दी देखे हैं। 2020 से लेके 2024 तक जो हमारी जर्नी है, 2020 टू 2024, दैट हैज बीन ब्यूटीफुल। रिटर्न्स हैव बीन 20% अप, यू नो, इवन इन वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड उसमें 20, 22, 23% का रिटर्न बहुत आराम से बना है, 3 ईयर कैगर या 5 ईयर कैगर। और अब बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट टाइम आ गया है कि हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन सही सेट करें। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन कैसे सेट करेंगे कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% है, इन्फ्लेशन 6 से 7% है, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन इंडियन मार्केट से 12 से 14% होनी चाहिए। और यही हमें सेट करना है। ये जो 20, 22, 23%, 25%, 25% कैगर रिटर्न्स की जो बातें होती हैं, ये एक टाइम था जब बहुत अंडर वैल्यूड मार्केट होता है और हम उसमें एंटर करते हैं तो ये हमें मिलता है। जैसे 2020 में था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी जब हर जगह बहुत ज्यादा पेसिमिज्म था,
तो वैल्यूएशन कम थी, और उस समय जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनके बहुत अच्छे रिटर्न्स बने। तो पास रिटर्न देख के क्लाइंट की 22% 25% रिटर्न एक्सपेक्टेशन मत सेट कीजिए। 12 से 14% इक्विटी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए। ना उनको बुरा लगेगा ना आपको बुरा लगेगा। राइट सर, और राइट। मैं इस बात पे आप लोगों से एक अपना मेरा और अनिरुद्ध का कॉमन एक्सपीरियंस 2024 में एक बैंगलोर में मैं और अनिरुद्ध एक क्लाइंट से मिले थे। अ, उनके पास करीब 80-100 करोड़ रुपए आया था इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम लोग मिले। तो हमारा डिस्कशन इस बात से शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि 30% रिटर्न तो बनता ही है, 30% से कम रिटर्न में तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो वो डिस्कशन शुरू हुआ और उन्होंने उस टाइम दो इंश्योरेंस पॉलिसीज ली। तो हमने कहा इंश्योरेंस में क्यों इन्वेस्ट कर दिया? क्या है, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज के फंड है ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है और इन्होंने 55% रिटर्न दिया है। मैं कहा कि कहते हैं आप कुछ ऐसा दिखाइए जो ये 55% से बेटर रिटर्न दे सकता है। बिलीव मी, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। और मतलब कि जब जब हमने उनको बोला कि आप आज के दिन इन्वेस्ट कर दीजिए, इस मोमेंट में इन्वेस्ट कर दीजिए, उन्होंने नहीं कराया। और आज उनके रिटर्न जो है 6-7% नेगेटिव है। और सिर्फ जो पैसा हमारे कहने में उन्होंने डेट पे इन्वेस्ट किया था वहीं पे उनका रिटर्न बना है। तो जो अनिरुद्ध अभी बात बोल रहे थे बिल्कुल सही है कि एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। अगस्त 2020 के बाद से जब से मार्केट ने टर्न अराउंड किया था पोस्ट कोविड, 2.5 साल में मार्केट ने एवरेज 20-25% रिटर्न दिया। सारे फंड्स ने रिटर्न दिया, जिसको कहते हैं अंधा लूला लंगड़ा सब चल गया। तो आदमी को लगता है कि पैसा बनाना बहुत आसान होता है, वो उसके लिए न्यू नॉर्मल हो जाता है कि ये तो होता ही है, ये तो ऐसा रिटर्न बनेगा ही। और उसी टाइम पे मैं ये मार्केट करेक्शन प्लान के बारे में सबसे बात करता था, क्योंकि जब रिटर्न बनाना इतना आसान हो जाएगा, मार्केट करेक्ट हो जाएगा, और जितना रिटर्न बनाना डिफिकल्ट होगा उतना ही मार्केट में आने वाले समय में ज्यादा रिटर्न बनेगा। ये डायरेक्ट कोरिलेशन है। जब आपके सारे इन्वेस्टर्स ये बोलने लग जाएंगे अब हमारा पैसा निकाल दो बस हो गया, यानी कि आप समझिए मार्केट टर्न अराउंड होने वाला है। और जब आपके सारे इन्वेस्टर्स बोलने लग जाए कि मेरा घर बेच के इक्विटी में पैसा लगा दो, यहाँ तो 25% रिटर्न बन ही जाएगा, यानी कि मार्केट करेक्शन का टाइम आ गया। ये सालों साल से बात है, बिकॉज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू मेक मनी। इट इज नॉट द इजिएस्ट थिंग, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। लेकिन हमें अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, प्रोसेस मेंटेन करना चाहिए, हमें एसेट एलोकेशन करना चाहिए, हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जो भूल गया आप लोगों से डिस्कस करना, अ, आप लोगों एक दो क्वेश्चन आए तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि ब्रोकरेजेस कम हो गई हैं, कमीशन कम हो गई है, इनकम कम हो गई है। मुझे लगता है एक प्रोडक्ट कैटेगरी जो हम लोग बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं वो है इंश्योरेंस। आई थिंक सो वी कंप्लीटली इग्नोर इंश्योरेंस एज अ कैटेगरी। पहली चीज तो ये समझिए, इंश्योरेंस का मतलब लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है। इंश्योरेंस इज योर टू व्हीलर इंश्योरेंस, योर हेल्थ इंश्योरेंस, योर टर्म इंश्योरेंस, योर फोर व्हीलर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज एवरीथिंग, योर बिजनेस इंश्योरेंस। हम अपने क्लाइंट से आज की डेट में हमारे कई ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इंश्योरेंस करना शुरू किया। आज उनकी इंश्योरेंस इनकम जो है इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इनकम, क्योंकि उनको समझ में आ गया था। वो हमसे आए, मिले, पर्सनली मिले, उन्होंने पूछा आज से 7-8 महीने पहले। हमें नहीं पता था कि ये वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन हमने जैसे आज हम आपको बोल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हमने उस टाइम भी यही चीज बोली थी। तो उन्होंने पूछा तो क्या करें, तो हमने कहा कि आपका इतना बड़ा क्लाइंट बेस है, आप उनको इंश्योरेंस करिए। आप उनकी मोटर इंश्योरेंस करिए, होम इंश्योरेंस करिए, हेल्थ इंश्योरेंस करिए, अच्छी लाइफ इंश्योरेंस करिए, टर्म इंश्योरेंस करिए। जिन्होंने करा आज उनका जो भी उनकी टोटल इनकम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से थी उसकी 40 से 60% इनकम वो एडिशनल जो है इंश्योरेंस से जनरेट कर रहे हैं। और इंश्योरेंस से आपका क्लाइंट बहुत स्टिकी हो जाता है। भाई अगले साल आपको याद तो करेगा ना जब आपको उसका रिन्यूअल आएगा, गाड़ी का आएगा, होम इंश्योरेंस का आएगा। आई थिंक हम बहुत आसान चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं जो हमें करनी चाहिए।
हम कॉम्प्लेक्स चीजों की तरह ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो छोटी छोटी आप सबके एवरेज 200 300 400 क्लाइंट्स होते हैं, हम क्यों नहीं उनकी सारी इंश्योरेंसेस करते हैं? उनकी फैमिली की जितनी भी इंश्योरेंसेस हम क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप उनकी इंश्योरेंस से सपोर्ट करवाते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंश्योरेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम नहीं तो महीने की 4 से 5 पॉलिसी छोटी बड़ी का आपको अपने लिए टारगेट लेके चलना चाहिए, और आप साल 1.5 साल इस टारगेट पे कर लीजिए, 4 पॉलिसीज पर मंथ, छोटी बड़ी कुछ भी, ऑटो हो हेल्थ हो, कुछ भी हो। और आप 1 साल बाद हमसे आके बात करिए, आप कहेंगे कि यार ये तो 20 से 30%, 20 से 30% जो है मेरा बिजनेस बढ़ गया। देखिए, म्यूचुअल फंड में कमीशंस कम होंगी, एमएफपीएमएस रियलिटी है, क्लाइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएगा, डायरेक्ट कोड का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर आज आप अपने आप को प्लान नहीं करेंगे इस चीज के लिए, 3 साल बाद विल बी टू लेट फॉर यू टू डू इट। जैसे आज 2 साल बाद मार्केट करेक्शन प्लान के बारे में डिस्कस करना इज लेट, वैसे ही इस चीज के बारे में अगर आप एआईएफ पीएमएस नहीं करेंगे, आप अनलिस्टेड नहीं करेंगे, आप इंश्योरेंस नहीं करेंगे, आप बॉन्ड्स नहीं करेंगे, आप एफडी नहीं करेंगे, you will not be as competent as your peer wealth advisor will be to the client। जिसको कहते हैं ना, अस्तित्व बना के रखने के लिए, आपको अपनी पोजीशन बना के रखने के लिए ये सारी चीजें सीखनी जरूरी है और सारी चीजें डिस्कस करनी। क्लाइंट हैज अ फुल राइट टू से नो, वी डोंट पुश एनीथिंग, वी डोंट हार्ड सेल एनीथिंग, बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप एक दुकान में जाते हैं तो शॉपकीपर ये थोड़ी ना कहता है कि बस आपको कौन सी कलर की शर्ट खरीदनी है, वो पूछता है शर्ट खरीदनी है ना, तो सब कुछ दिखाता है उसके पास जो भी चीजें होती है। हो सकता है आप व्हाइट शर्ट खरीदने गए हो और आप पिंक शर्ट खरीद के निकल जाते हैं। लेकिन एक ऐसी दुकान है जिसमें एक ही कलर की और एक ही तरह की शर्ट रखी है, आप उस दुकान पे बार बार दोबारा जाएंगे और शॉपिंग करेंगे, या उस दुकान पे जाएंगे जहां पे 50 रंग की शर्ट्स और डिफरेंट ऑप्शंस है? हम मॉल में क्यों शॉपिंग करते हैं? क्योंकि वहां ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। हम फूड कोर्ट में क्यों खाना जाके खाते हैं? क्योंकि वहां ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। हम अमेजोन से क्यों शॉपिंग करते हैं? क्योंकि वहां ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। द वर्ल्ड वर्क्स ऑन ऑप्शंस। अगर ऑप्शन नहीं चाहिए होते तो अमेजोन बनता ही नहीं, आप अपने बगल की परचून की दुकान पे या बगल की शॉप में जाके शॉपिंग कर लेते। मॉल क्यों जाते? तो आप अगर अपने आप को एक प्रोडक्ट का शोरूम नहीं बनाएंगे, आने वाले समय में कोई और वही काम करेगा एंड इट विल इम्पैक्ट यू। और ये मैं उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ लिख कर बोल रहा हूं जितना 2 साल पहले मैंने मार्केट करेक्शन प्लान के लिए बोला था। इस बात के लिए भी आज मैं उतने ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। भगवान ना करे, गॉड फॉरबिडेन किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन शायद हम 2 साल बाद काफी पार्टनर से बात कर रहे होंगे कि वो फिर से यही बात बोले कि जैसे मैंने बताया 50-60 पार्टनर पिछले 5-6 महीने में हमसे आके मिले, मुझसे बात करी, आपने जो बात बोली थी सही बोली थी, हमने ध्यान नहीं दिया, अब आगे देखते हैं क्या करना है। आप लोग ऐसे ही आएंगे और वो मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है कि आ रहे हैं। मैं हम सब चाहते हैं कि बिकॉज आर ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ग्रोथ। अगर आप ऊपर आगे बढ़ेंगे, बड़े बनेंगे, तो हम भी बनेंगे। तो हम तो चाहते ही है कि आपके साथ जो भी बेस्ट हो सकता है वो करें। हमारी और आपकी कुंडली मिली हुई है, अलग अलग नहीं है। अगर आप अच्छा करेंगे तो हम अच्छा करेंगे, लेकिन ये रियलिटी है। आप मानिए ना मानिए, शोरूम में जितना सामान होता है, ग्राहक उतना ही उस शोरूम में जाने को पसंद करता है। कोई डिसएग्री करता है तो कह सकता है। चलो, लेट्स टेक लास्ट वन क्वेश्चन, 1 or 2 क्वेश्चन। इनफैक्ट एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक इट विल हेल्प एवरीवन। आई फॉरगॉट द नेम। उन्होंने ये पूछा था कि जैसे एफडी में 6% मिलता है, वैसे ही अगर पीएमएस में 6% गारंटीड या डेट एआईएफ में 6% गारंटीड मिल जाए, तो हम लोग बहुत इजीली स्विच करा पाएंगे एफडी से पीएमएस में या एआईएफ में। तो आई फॉरगॉट द नेम किसने पूछा था, बट दो चीजें यहाँ पे। पहला, सेबी डजंट अलाउ, इनफैक्ट नो बडी इज अलाउड टू से गारंटीड रिटर्न्स किसी भी प्रोडक्ट में। वी कांट से गारंटीड वो रिटर्न।
आपका टैक्स फ्री बॉन्ड का भी रिटर्न गारंटीड नहीं होता है। हिंदुस्तान में कोई भी चीज गारंटीड नहीं है। रेगुलेटर कभी भी गारंटीड वर्ड प्लीज मत यूज करिएगा। और आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप एडवाइजर नहीं है। आप दो चीजें कभी नहीं यूज कर सकते। आप क्लाइंट को एडवाइस नहीं कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, और आप जो है, कोई भी प्रोडक्ट जो है गारंटीड प्रोडक्ट नहीं होता है। हर चीज एश्योर्ड होती है। रिस्क हर चीज में, डेट में क्रेडिट रिस्क है, इक्विटी का तो रिस्क सबको पता है, गोल्ड का भी रिस्क सबको पता है। आज गोल्ड 11% करेक्ट हो चुका है, हाई से 11-12%। सिल्वर भी करेक्ट हो चुका है। तो प्लीज ये शब्दों का कभी भी इस्तेमाल ना करें, एडवाइजर का और गारंटी का। लेकिन आज हमारे साथ सारे पार्टनर्स हैं, तो मैं एक बार डेट लेडर, जो मैं दैट इज माय फेवरेट टॉपिक, एक बार कवर करता हूँ क्विकली। हाउ टू स्टार्ट डेट एलोकेशन। तो हर क्लाइंट कुछ ना कुछ एफडी में पैसा जरूर डालता है, दे इन्वेस्ट इन एफडी। सो यू कैन ब्रिंग दैट हियर इनटू यूनिटी या सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड मेक अ 0.4-0.5% ट्रेल कमीशन ऑन इट एंड बिल्ड अ पैरेलल बुक। तो आप खुद मल्टीप्लिकेशन करके देखिए कि आप कितनी फैमिलीज मैनेज करते हैं, उसमें कितने पैन कार्ड्स हैं। हर पैन पे अगर हम 3 से 5 लाख का भी एलोकेशन इन यूनिटी या सूर्योदय में करें, तो हम कितनी बड़ी बुक बना सकते हैं, और ये ट्रेल कमीशन मिलता है। सेकंड स्टेप है कि क्लाइंट बोलता है 6-7% हो गया, क्या इससे बेटर कुछ और हो सकता है, या मेरे को ज्यादा एलोकेशन करना है। तो आप कॉर्पोरेट एफडी देखिए, हमारे पास श्रीराम, महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, पीएनबी, एलआईसी, ये सारे कॉर्पोरेट एफडीज हमारे पास अवेलेबल हैं। यू कैन मेक अपफ्रंट रेवेन्यू ऑन इट, और वो हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए एंड दे विल टेल यू। तो वहां कवर होता है 7-8% का ब्रैकेट। अब आता है कोई क्लाइंट बोलता है मुझे डेट एलोकेशन करना है, इक्विटी नहीं करना है, लेकिन क्या हम 8 से 10% के बीच में या 11% कुछ बना सकते हैं। वहां पे दो कैटेगरीज ओपन अप हो जाती है हमारे लिए। एक होती है एनसीडीज एंड बॉन्ड्स, जो हम चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हों, अच्छी एनबीएफसीज के हों, प्लीज कनेक्ट विद आवर टीम, वी पब्लिश इट ऑन अ मंथली बेसिस। हम हर महीने उसकी लिस्ट निकालते हैं, इनफैक्ट हर वीक भी और हर रोज भी उसके कोटेशंस हम भेजते हैं। तो यू कैन स्टार्ट एलोकेटिंग अक्रॉस 3 to 5 बॉन्ड्स। आराम से आप एलोकेशन करिए। और अगर कोई क्लाइंट है जो 50 लाख एंड अबव देने के लिए रेडी है, तो आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं डेट पीएमएस। हमारे पास फिलिप कैपिटल, नियो, यील्ड एनहांसर और सुंदरम, तीनों डेट पीएमएस हमारे पास अवेलेबल है, जहां पे 50 लाख मिनिमम टिकट साइज है, 9 से 11% का यील्ड, सीएजीआर रिटर्न और एक्सआरआर यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम, और सेफ प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स है, ही वॉन्ट्स अ डबल डिजिट रिटर्न, इक्विटी में नहीं डालना है, वॉलेटिलिटी नहीं है, हर चीज में उनको ये है कि यार इससे अच्छा एफडी होता। उनके लिए आता है डेट एआईएफ और इंफ्रा एआईएफ। अगेन बैंड इज एनीवेयर बिटवीन 14 to 22%, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा डेट एआईएफ या इंफ्रा एआईएफ ले रहे हैं। अगेन कनेक्ट विद आवर टीम, इन्वेस्टमेंट काउंसलर्स एंड आवर ब्रांच मैनेजर्स एंड टेरिटरी हेड्स, एंड दे विल हेल्प यू विद द एलोकेशन। तो डेट में ही हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपका क्लाइंट छोटा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख डालना चाहता हो, चाहे 50 लाख, 1 करोड़ डालना चाहता हो, वी हैव द कंप्लीट बुके ऑफ प्रोडक्ट्स टू कवर द एंटायर स्पेक्ट्रम। एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है कि अगर मेरे को ग्लोबली एलोकेट करना है, तो मेरे को कौन से फंड में डालना चाहिए, कौन से मार्केट में डालना चाहिए। अगेन हमारी एडवाइस यही है कि प्लीज हमारा जो मंथली मार्केट आउटलुक आता है और जो वन डिजिटल रेकनर आता है, प्लीज उसको पढ़िए। और हम जो मंथली पार्टनर एंगेजमेंट मीट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट हेड विनायक और चीफ इन्वेस्टमेंट एंड अनलिस्टेड हेड सचिन जसूजा के साथ, आप उनको अटेंड कीजिए। उसमें बहुत सारे व्यूज और रेलेवेंट पॉइंट्स और रैशनल उसमें शेयर होते हैं। बट टू समराइज, अगर ऑफशोर में आज पैसा डालना है, पहली बात, पूरा का पूरा लमसम आज एक साथ नहीं डालना है, स्टैगर करके डालिए। दूसरा, किसी एक थीम या एक इकोनॉमी को पकड़ के मत चलिए, डाइवर्सिफाई करिए, राइट। किसी को नहीं पता था कि कोरिया इतना रिटर्न देगा, या जापान इतना रिटर्न देगा, या यूरोप देगा, या यूएस देगा, या चाइना देगा। आइडिया इज कि हमारा 10 से 20% का एलोकेशन ग्लोबल मार्केट में हो सकता है पोर्टफोलियो में, एंड देयरफॉर चूज वाइजली एंड डाइवर्सिफाइड। किसी एक थीम को, चाहे वो एआई हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको मत चेज करिए। डोंट चेज थीम्स, डोंट चेज पास्ट रिटर्न्स, एलोकेट प्रूडेंटली। Yes, Anis, yes. I think, sir. Okay. Any last question? Should we? I think Anis sir has covered almost
all the questions जो भी relevant question हमारे पास अभी तक आए थे. So I think we can wrap up this call. Manu sir, if you want to add something. No, thank you so much for your time. एक क्वेश्चन आया है गिफ्ट सिटी के लिए अबाउट द गिफ्ट सिटी नहीं, बट वी नीड टू नो मोर डिटेल्स कि क्या है भैया. इंटरनेशनल इन्वेस्ट करने के लिए थ्रू LRS मनी गिफ्ट सिटी इज वेरी गुड, लेकिन ये डिटेल कॉन्वर्सेशन है. आई डोंट थिंक सो. आपके जो भी BD हैं आप या IC हैं आपकी लोकेशन में, प्लीज आप उनसे डिस्कस कर लीजिए. वी हैव ऑल द ऑप्शंस इन गिफ्ट सिटी एंड हैप्पी टू अपडेट यू ऑन दैट. So, I just wanted to thank all of you. आपने अपना कीमती समय निकाला. I hope this is of some help to you. But as promised, I will connect with you every quarter, and we will discuss the market. We will talk about the situations. We will talk about the products. But do consider what we have discussed with you. Diversification, asset allocation, product suggestion, these are very important things. Debt बहुत ज्यादा जरूरी है. Unlisted equity, PMS, AIF बहुत ज्यादा जरूरी है. Insurance is a great opportunity which is not market linked. हर चीज market linked है. इंश्योरेंस, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, ना डेट का रिस्क है ना इक्विटी का रिस्क है. आप मोटर इंश्योरेंस कर रहे हैं, ना उसमें डेट का रिस्क है ना इक्विटी का रिस्क है. तो थोड़ा सा डीकपल्ड बिजनेस भी करिए, which is extremely critical for all of you. We wish you best of luck and best of success. We are standing with you shoulder to shoulder. We are one team. और आपके जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, प्लीज अपनी टीम्स के थ्रू आप डिस्कस करिए. फॉर डिटेल्ड बिगर डिस्कशन, प्लीज डिस्कस इट विद आवर स्पेशलिस्ट ICs and our teams at HO. And we are always there to help you and serve you. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Manu sir, and thank you so much, Ani sir, and thank you so much, partner, for joining on this call today in this large number. Definitely हम इस तरह की कॉल एवरी क्वार्टर आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होंगे. यस मनु सर. जस्ट वन थिंग कि इसके अलावा हमारी जितनी प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट कॉल्स होती हैं, प्लीज उनको जरूर आप अटेंड करिए. अनलिस्टेड की कॉल सचिन जसूजा एंड हिज टीम डज इट. हमारी डेट की कॉल्स जो होती है वो अंकित चंदानी एंड हिज टीम डज इट. हमारी इंश्योरेंस की कॉल्स होती हैं, प्लीज आप उनको आप अटेंड करिए. दोज कॉल्स आर मेंट फॉर यू. और मैं तो आज बहुत ही एक हाई लेवल पे आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन इन सब गिफ्ट सिटी के ऊपर हमारी कॉल्स हुई हैं. प्लीज जो हमारे कॉल्स के आपको रिक्वेस्ट आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, आप डू अटेंड दोज कॉल्स एंड आई एम श्योर यू विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. श्योर सर, श्योर. एंड आई ऑल्सो मेंशन वन व्हाट्सएप कम्युनिटी नंबर इन द चैट बॉक्स, जिस पर जितनी भी हमारी कॉल्स होती रहती हैं, वी आर शेयरिंग ऑल दिस इनवाइट इन दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी. सो नंबर इज 7678347759. दिस इज मेंशन इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. अभिषेक एक बार फिर डाल दो चैट बॉक्स में, क्योंकि हाँ, वो ऊपर चला गया होगा दूसरे चैट में. सो जस्ट पुट इट अगेन. just yes. So I mentioned that number again. So this is our WhatsApp community number for our partners. So जितनी भी calls होती हैं, जितने भी product related आपके documents होते हैं, one pagers होते हैं, we are sharing constantly on this group. So you can join this group. You can send hi on this number. We will definitely add you in that community. And going forward, आपको सारे calls के intimation वहाँ पर आते रहेंगे. Yeah. So thank you so much. Thank you once again for joining on this call on a large number. And definitely we will see you soon in the next quarter. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.